Good morning, class 5th. So, today we are going to start with a new chapter, that is the Mountain Rat of your English reader book. Um, we are left with the poem that is Coromandel Fishers. Once I'm done with this 6th chapter, which I'm doing, I'll be doing this Coromandelam Fisher afterwards, alright? This poem is a little bit difficult one, and it has various aspects which I need to explain to you. So I'll be doing it after I'm done with 2 more chapters which I have to finish. So I'll be doing it after that chapter. This is a bit difficult poem, and it has so many things which I need to tell you in this. So what all includes in the poem and everything. So we'll be doing it later on. So today I'm gonna start with a new chapter, that is Mountain Rat. So this chapter is about freedom fighter Chhatrapati Shivaji. Chhatrapati Shivaji was a very brave leader of his times, and we are gonna study about him now. India is a country of great heroes and leaders. They play important part in making community living happier. They face hardships and dangers and even sacrifice their life for the good of the others. So India has been the country of heroes and leaders, and we know various leaders like Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, and many others. They play important role in making community living happier. How they play important role in making community living happier? The sacrifices they have done so that we can live in freedom. The kind of sacrifices they have done, because of which we are living today in a free country. They face hardships and dangers and even sacrifice their lives for the good of the people, and they face hardships. Hardship मतलब उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, and they have faced many dangerous situations and sacrificed their lives as well. They have sacrificed their life, वो शहीद हो गए, all right, so that we can live happily. हमारे भले के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया. So one of that leader was Chhatrapati Shivaji, who was one of the noblest son of India. So Chhatrapati Shivaji was one of the noblest son of India. Shivaji was born in 1627 at the fort of Shivneri in Maharashtra. So where was he born? He was born in 1627 at the fort of Shivneri in Maharashtra. His mother Jijabai molded his character very carefully. उनकी मदर का नाम क्या था? What was his mother's name? His mother's name was Jijabai, and she molded his character very carefully. Molded मतलब the way she nurtured him, जिस तरह से उन्होंने उनको पाला, ठीक है, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक था. शी टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ आर एपिक्स, द रामायणा एंड द महाभारता. हाउ शी मोल्डेड हर कैरेक्टर? बाय टेलिंग हिम द स्टोरीज of our epics, like the story of Ramayana and Mahabharata, how brave and how wonderful those kings was, who used to think about their country. She sets for him the noble idea of free sovereign state for the people of Maharashtra, and she set for him the noble idea of free sovereign, मतलब एक आज़ाद देश का आइडिया जो था वो उन्होंने छत्रपति शिवाजी को दिया. दादोजी कौंदेव ट्रेंड हिम इन द यूज़ ऑफ आर्म्स, एंड दादोजी कौंदेव उन्होंने उनको जो है वो आर्म्स की ट्रेनिंग दी थी. मतलब उन्होंने उनको कैसे आर्म्स और एमिनेशंस को यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग उन्होंने उनको दी थी. Thanks to the teaching and guidings of Jijabai and Dadoji Kondev, Shivaji came to cherish the ideal of Swaraj, and that's how he learned that he need to make an independent state. He also got the blessings of great saint poets like Swami Ramdas and Tukram. और उनको किसकी ब्लेसिंग्स भी मिली थी साथ में? स्वामी रामदास और तुकरम की, जो उस टाइम पे पोएम्स लिखते थे जिससे लोग मोटिवेट होते थे फ्री कंट्री के लिए, आज़ादी के लिए. They helped him by bringing about a great awakening and sense of unity among the people. और स्वामी रामदास और तुकरम की जो पोएम्स थी उन्होंने उनको हेल्प किया था ताकि
उनको जागरूकता मिले और कैसे लोगों में यूनिटी होनी चाहिए सो दैट वी कैन फाइट फॉर अ सिंगल कॉज. सो दोज लर्निंग्स ही गॉट फ्रॉम दीज पोइट्स. Shivaji began organizing the brave and faithful people into an army, and that's how he started making his army. उन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू करी फेथफुल लोगों को इकट्ठा करके. He toured the whole Maharashtra explaining the people about the importance of स्वराज. और उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को स्वराज के क्या बेनिफिट है और स्वराज क्यों चाहिए, हमको आज़ादी क्यों चाहिए, उसका उन्होंने उनको महत्व बताया. द पीपल रेडिली फ्लॉक्ड अराउंड हिम. लोग जो है उनके आसपास फ्लॉक यू नो ऑल मीनिंग ऑफ फ्लॉक मतलब झुंड लगा के इकट्ठा खड़े हो जाते थे लोग उनके आसपास. तो जब भी वो बातें बोलते थे या लोगों को मोटिवेट करते थे, पीपल यूज टू फ्लॉक्ड अराउंड हिम. दे न्यू दैट शिवाजी वुड फ्री देम फ्रॉम द क्रूअल रूल ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड बीजापुर, एंड दे हैड दैट फेथ इन शिवाजी दैट ही विल हेल्प हिम, ही विल फ्री देम ऑल फ्रॉम द क्रूअल रूल ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड बीजापुर. यहाँ के सुल्तान, यहाँ के राजाओं से उनको बचाएंगे. शिवाजी soon succeeded in raising an army of devoted freedom fighters, and soon by doing so he succeeded in raising an army. उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई. किसकी? डिवोटेड फ्रीडम फाइटर्स की, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार थे. शिवाजी देन लॉन्च्ड अ कैंपेन फॉर कैप्चरिंग द हिल फोर्ट्स एंड द सराउंडिंग रीजन्स. एंड देन उन्होंने कैंपेन लॉन्च करा दैट ही वॉज लड़ाई करने के लिए कि कैसे अपने आसपास के एरिया को फ्री करवाना है. ही ट्रेंड हिज सोल्जर्स इन गुरिल्ला वॉरफेयर, हैरास्ड एंड डिफीटेड द मैसिव आर्मीज ऑफ द एनिमीज टाइम एंड अगैन. एंड हाउ ही ट्रेंड हिज सोल्जर्स, ही ट्रेंड हिज सोल्जर्स इन गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला वॉरफेयर एक तरह की लड़ाई होती है, वो लड़ाई उन्होंने अपने सोल्जर्स को करना सिखाया. एंड दैट्स हाउ दे हैरेस्ड एंड डिफीटेड हिज एनिमीज. शिवाजी इंस्पायर्ड एवरी सोल्जर टू फाइट विद ऑल हिज माइट. और उन्होंने अपने सारे सोल्जर्स को अपनी बुद्धि के साथ, मतलब दिमाग के साथ कैसे लड़ना है, इस चीज़ के लिए उनको इंस्पायर करा. ही कॉन्टिन्यूड टू डील ब्लो आफ्टर ब्लो एट द एनिमी, एंड ऐसे ही वो अपने एनिमीज के साथ में लड़ाई करते गए और उनको हराते गए. एट लास्ट ही सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग स्वराज एंड हिज ड्रीम केम ट्रू विद दिस. ही सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग स्वराज. उन्होंने महाराष्ट्र को दिल्ली और बीजापुर के सुल्तानों से आज़ाद करवा दिया. ही मेड रायगढ़ द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम. और उन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया अपनी किंगडम की. शिवाजी वॉज अ ब्रेव एंड फियरलेस वॉरियर. ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज इन माउंटेन वॉरफेयर ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द माउंटेन रैट, एंड दैट्स हाउ ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ माउंटेन रैट. ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज इन माउंटेन वॉरफेयर, पहाड़ों पे माउंटेन्स पे कैसे लड़ाई करी जाती है इसकी उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. एंड दैट्स हाउ ही सक्सीडेड in defeating his enemies by fighting in the mountains. So उनको माउंटेन्स पे लड़ाई कैसे करनी है और माउंटेन्स के थ्रू कैसे जीतना है वो उनको बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उनको कौन सा टाइटल दिया गया, द माउंटेन रैट. He was also an able administrator and a far-sighted statesman, and he was brave, he was a fighter, and he was a very kind-hearted person. Along with that he was a good administrator. मतलब उनको पता था कि अपने राज्य को उनको कैसे चलाना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है अपने किंगडम का. एंड ही वॉज अ फार-साइटेड स्टेटमेंट, मतलब वो बहुत ही दूर की देख के चलते थे. defensive organization was, and his defensive organization was superb, मतलब it was outstanding. He was the only ruler of his time who had built a powerful navy. और वो अपने टाइम के इकलौते रूलर थे जिन्होंने पावरफुल नेवी बनाई थी. नेवी कौन होती है? नेवी इज़ द फोर्स विच फाइट्स इन दी वाटर, जो पानी में लड़ाई करती है. तो उन्होंने अपनी एक नेवी बनाई थी. इन हिज स्वराज एवरी पर्सन हैड फ्रीडम ऑफ वर्शिप. और उनके स्वराज में, उनके राज्य में एवरी पर्सन हैड दी फ्रीडम ऑफ वर्शिप. किसी को कोई किस रिलीजन को फॉलो करना है, किस रिलीजन को फॉलो नहीं करना, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता था. एवरीवन हैड द राइट टू चूज their own religion. He respected other religions as much as his own, and he respected other religions as much as his own. उन्हें जैसे वो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे ऐसे वो बाकियों के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते थे. शिवाजी वॉज एन ओबीडियंट एंड लविंग सन. ही वॉज एन ओबीडियंट मतलब वो अपनी बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही अपनी माँ के बहुत प्यारे बेटे थे. ही वॉज क्राउन छत्रपति इन 1674 and dedicated his whole life to the well-being of the community. And then he was crowned as जो उनका नाम था शिवाजी था, उनको बाद में छत्रपति का
उपाधि दी गई, क्राउन पहनाया गया उनको, एंड ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी कम्युनिटी की वेलबींग के लिए, भलाई के लिए निकाल दी। शिवाजी वॉज ग्रेट इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड एंड ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर। सो राइट, सो दिस वॉज शिवाजी छत्रपति। एंड नाउ वील कम टू द question and answers. Shivaji was born at the fort of Shivneri in Maharashtra. Shivaji's mother Jijabai molded his character. Dadoji Kondev trained Shivaji in the use of arms. The saint poet Swami Ramdas and Swami Tukram brought about a great awakening in Shivaji. Shivaji was born in 1637. False. Shivaji believed in Swaraj. True. He fought against the British rule. False. He fought against the Sultans of Delhi. Raigad was the capital of Delhi Sultans. False. Shivaji was a very courageous ruler. True. Now answers I will be sending you. Now here are names of 5 great men of India, but they are scrambled. Can you work them out? आपको ये scrambled name में से name बताने हैं. NRHEU, नेहरू, पटेल, गांधी, टैगोर and बोस. Now this is one of, it's very simple one. आपको ये अपने आप करना. Fit the name of these picture in such a way that you will get the name of a prominent Indian leader in these circles downward. आपको इन सबको ऐसे यहाँ पे फिट करना है कि यहाँ पे आपको एक इंडियन लीडर का जो है वो नाम मिलेगा. जैसे दिस इज एरोप्लेन. एरोप्लेन कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आपको जो जहाँ पे फिट हो रहा है उसको फिट करना. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम विथ सिमिलर मीनिंग्स. स्टेट. स्टेट का मतलब होता है टेरिटरी. ट्रेन. ट्रेन का मतलब प्रिपेयर करना, तैयार करवाना. ट्रेन. सेंस इज अ फीलिंग. फ्लॉक मीन्स गैदर होना, फ्लॉक्ड अराउंड. नेक्स्ट इज नाउ यूज द वर्ड्स इन द क्वेश्चन अबव फ्रॉम column 1 to make sentences in 2 different ways. Example, मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया. ये वाला स्टेट क्या है? ये स्टेट है टेरिटरी, जगह. मैरी वॉज इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑन द नाइट ऑफ द प्ले. दिस स्टेट इज द एग्जिस्टिंग ऑफ पर्सन, कि वो उस टाइम पे कैसे हाल में है. ये वो वाला स्टेट होता है. एक स्टेट होता है जगह वाला स्टेट. ये स्टेट है कि उसकी कंडीशन कैसी है. ऑलराइट, सो ऐसे ही आपको हर एक वर्ड के 2 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो आपको ऐसे ही 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. ट्रेन. ट्रेन, एवरीवन नोज व्हाट इज ट्रेन. ट्रेन एक रेलगाड़ी होती है ना, तो द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम. दूसरा ट्रेन क्या होता है? किसी को तैयार करना, प्रिपेयर कराना. दादोजी कौंदेव ट्रेन शिवाजी इन द यूज ऑफ आर्म्स. सेंस. रिया सेंस ऑफ स्मेल इज वंडरफुल. ये वो वाली सेंस है. नाउ कौन सी सेंस? जो हमारे पास सेंसेस होते हैं, दैट सेंस. अब ये सेंस कौन सा है? वन शुड ऑलवेज यूज इज कॉमन सेंस. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट फ्लॉक. आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब शीप का झुंड देखा. आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप. थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉक टू द बीच ऑफ एवरी ईयर. थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉक टू द बीचेस एवरी ईयर, मतलब हज़ारों लोग बीच पे इकट्ठा होते हैं हर साल. नाउ मैच द वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग. नोबल. नोबल मीन्स, वेट, sorry, yes, opposite meaning. Noble means the person is very good and noble का opposite cruel. Next is early. early का opposite क्या होता है? late. freedom. freedom का opposite slavery, गुलामी. defeat का मतलब, defeat मतलब हारना. win is opposite of defeat. loving is hateful. loving का opposite hateful. Now below are 2 given columns. Column 1 consists of the real name of our great freedom fighters and column 2 contains their nicknames. Match them appropriately. लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी बोला जाता था. इट वॉज हिज निक नेम. बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर को बाबा साहेब बोला जाता था. रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोला जाता था. सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस का दूसरा नाम क्या था? नेताजी. इट वॉज हिज निक नेम. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का निक नेम था बापू. अब्दुल कलाम आज़ाद. अब्दुल कलाम आज़ाद का निक नेम था मौलाना. सो दीज आर द निक नेम ऑफ दीज famous great freedom fighters. Now complete the following comparison using words from the help box. Shiva. Now these are sly, firm, proud, brave, light. Shivaji was as brave as lion. ठीक है, लाइन कितना ब्रेव थी. लाइन ब्रेव होता है ना. जज वॉज एज फर्म एज अ रॉक. रॉक बहुत फर्म होता है, रॉक बहुत हार्ड होता है, रॉक को आप हिला नहीं सकते हो, तो जज वॉज एज फर्म एज रॉक.
द पीस ऑफ क्लॉथ इज एज लाइट एज फेदर. नाउ फेदर क्या होता है, लाइट होता है ना, तो पीस ऑफ क्लॉथ इज एज लाइट एज फेदर. शी इज एज प्राउड एज पीकॉक. पीकॉक इज अ वेरी प्राउड एनिमल. ठीक है, उसको बहुत प्राउड होता है अपने आप पे, तो शी इज एज प्राउड एज पीकॉक. यू आर एज स्लाई एज फॉक्स. फॉक्स कितनी बहुत ही स्मार्ट होता है ना, फॉक्स बहुत तेज होता है, तो यू आर एज स्लाई एज फॉक्स. तो दीज आर दी एडजेक्टिव. बेसिकली ये वो एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो लायन, रॉक, फेदर, पीकॉक और फॉक्स को डिस्क्राइब करते हैं. नाउ रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ing फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन दी ब्रैकेट. नाउ द कैशियर काउंट द मनी व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक. द कैशियर वॉज काउंटिंग. वॉज क्यों आएगा, बिकॉज इट इज अ पास्ट टेंस. वॉज काउंटिंग. ऑल राइट. It rained in the morning when we went to school. It was raining in the morning when we went to school. The train was moving when we reached the platform. They were talking when they heard the noise. The players were playing when the bomb exploded. Now the use of do, did and does. Frame questions using do, does or did and answer them. Dash Shivaji succeeded in raising an army. Did Shivaji succeeded in raising an army? जहाँ पे पास्ट टेंस होता है, जहाँ पे हम पुरानी बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे डू और डज नहीं आता, उनकी जगह पे सिंपल और सिंपल डिड लगता है. यस, शिवाजी सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी. डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्वराज. यू के साथ हमेशा डू आता है. डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्वराज. यस, स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट. डिड ही रीड समथिंग अबाउट आवर ग्रेट लीडर्स. Yes, he read stories of our great leaders. Now, with name, it comes does. I will send you the notes also where to use do, does and did. Does Shivaji belong to Maharashtra? Yes, Shivaji belongs to Maharashtra. Do you know the name of Shivaji's mother? Yes, Shivaji's mother name was Jijabai. So that's how you need to do this. Now there is a paragraph which you need to write. Write a paragraph in about 100 words on your favorite leader and paste his picture in the space provided. Now whoever is your favorite leader, you need to write 100 words on him, that where he was born and why do you like him and what are his qualities and what has he done for the country or whatsoever. जो भी आप लिखना चाहते हो अपने favorite leader के बारे में, and you need to paste the picture of your favorite leader. Now color the following picture beautifully. This is your homework. This is Chhatrapati Shivaji. You need to color his picture.